Guys, today, as I said, we are talking about कि इंग्लिश कैसे बोला जाए. हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश कैसे बोला जाए, लेकिन today we'll be talking about words about our feelings. Whenever we speak in English, we use some words which is related to feelings. So आज हम उन words के बारे में बात करेंगे. So अभी हम लोग फेज 3 ग्रामर में हैं, जहां पे हम लोग अपने वोकैबुलरी को और ज्यादा बेटर करने के लिए कोशिश करेंगे. सो आज हमारी वोकैबुलरी का जो मेन टॉपिक है वो है फीलिंग्स. सो फीलिंग. सो आई रियली वांट टू आस्क यू बिफोर आई गो, फ्रॉम everyone, you know, I need one word which you know which is very much related with feelings. ऐसा एक वर्ड आप बताओ जो फीलिंग से रिलेटेड है. या शिवांगी, फीलिंग, any word which is related to feelings. It could be positive feelings, it could be negative feelings, anything. एक feeling के साथ एक होना चाहिए. Yes, anyone? Sir, may I? Yeah, please, Siddharth. Sir, I'm so excited. So excited, yes, very good. Excited is a feeling. So excited is a word. Very good. Yeah, Shivangi, I'm waiting. Devashish, anyone who is ready with the word? Affection. Affection. Yes, okay, affection, love and affection. Okay, very good. Yes, Raman. Anyone else? Sir, comfortable. I'm feeling comfortable. Okay, comfortable is also one of the feelings. Yeah, Gautam, participate. Shivangi, participate. Any word which denotes feelings. Any word. A word is, Gautam, if you are speaking something, I'm not getting any sound, so I don't know. Attachment. Attachment. Wow, what a feeling, you know, attachment. Very good. Yeah, Shivangi. Fine. I think somehow. So guys, you people try to understand. जो भी words आपने अभी use किया, ऐसा कोई word. Yes, Siddharth. Sir, if I say I'm confused, is it a feeling? Yes, confused. Confused is a state of mind. Okay, it's not an emotion. Okay. Emotion could be anger is an emotion. I'm angry. I'm sad. ये सारे emotion है. I'm happy. ये emotion है. So आप देखो, जो भी emotions के बारे में, feelings के बारे में बताया, आप सबों को उसके बारे में पता ही था. Happiness, you know, like excited, attachment, affection. या सुनीता जी, आपको पता था ना ये सब words? Comfortable. Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि हम लोग हमेशा एक ही वर्ड्स को, चुने गए वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं. हम कोई नया वर्ड उसके लिए यूज नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू द स्टोर एंड गेटिंग सम न्यू वर्ड्स. कुछ नए वर्ड्स अगर हमारे पास होंगे ना, तो हम जब इंग्लिश बोलेंगे तो सामने वाले के कान बजेंगे, क्योंकि हम लोग ना कान में अफेक्शन, लव, ये सब सुन सुन के बड़े हुए हैं. अटैचमेंट, एक्साइटेड. कुछ ऐसा वर्ड हमें चाहिए जो फीलिंग भी बताए और थोड़ा मॉडर्नाइज्ड भी हो, थोड़ा डिफरेंट भी हो. सुनने में डिफरेंट, हाँ, मतलब मीनिंग में भी डिफरेंट, बट सुनने में आई एम टॉकिंग अबाउट लोगों को. जब आपकी वो बातें जब वो सुने आपके मुंह में वो वर्ड, तो उनको लगे माय गॉड, ये कौन सा वर्ड था, मुझे समझ में ही नहीं आया. ज्यादा लोग तो समझेंगे नहीं, और कुछ लोग जो बिल्कुल नहीं समझेंगे वो सोचेंगे माय गॉड सुनीता जी, योर इंग्लिश इज सो गुड. तो कभी कभी ना खेल वर्ड्स का भी होता है, राइट? सो Yes, sir. हम लोग अभी तक सेंटेंस को ठीक करते हुए आ रहे थे, अभी हम लोग वर्ड्स पे फोकस करेंगे. तो चलिए, अभी हम लोग ज्यादा वक्त इधर उधर ना करके एकदम डायरेक्टली चलते हैं हमारे उन फीलिंग वाले वर्ड्स के पास. फाइन. सबसे आज हम लोग ऐसे 10 वर्ड के बारे में जानेंगे
10 words which denotes feelings. Okay, so the first word is Nostalgia. yeah. Tell me, what is this word? Nostalgia. Yeah, I'm looking for some more answer. Huh? Yes. Shall I have to explain, or you are asking? Just a minute. Let me see who knows. सुनीता जी, ये word कभी सुना है आपने? Nostalgia. या सुनीता जी, कभी सुना है आपने? No, sir, no. Okay, Gautam, have you heard this word nostalgia? No, sir. Okay, Siddharth. Yes, sir. I heard this. Okay, so now I'll ask Siddharth first. What do you understand by this word nostalgia? Nostalgia means, sir, the past memory. I think this kind of thing. The past memory. Suppose I left Kolkata so many years, and after a long time, when I returned Kolkata, that time I feel I am so much nostalgic. That kind Okay. of feeling. Okay, yeah, Debashish. Nostalgia means what Mr. Siddharth said. That's true. That past memory, definitely. But it the word the attached with some emotional values also, right? When we feel emotional with our past memories, the word nostalgia goes is fitted for that time purpose. Suppose, for example, I'm telling, suppose here now in Facebook, or very occasionally we see now that in our childhood days we used to play some games which are obsolete nowadays. Right. Now when we see those things, we become very much nostalgic. Suppose this is a picture, memory lane. Suppose in our childhood days, maybe we were in some village. We used to stay in village. It's not applicable for me, just for instance I'm telling. Okay, and suppose when we recall that, or we see we go through some photographs of that that period, then we become nostalgic. We become very much emotional. This emotional attachment is there. That is nostalgia. Absolutely right, my dear friends. Nostalgia. There are two things. First, what is the meaning of nostalgia, and how can we pronounce this word? आप इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इस वर्ड के साथ आप क्या सेंटेंस बना रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है. सो देवाशीष जी, एक सेंटेंस हो जाए आपके तरफ से इंग्लिश में. यू कैन ट्राई, एनीवन, आप थोड़ा सा ट्राई करो. अभी तो बहुत, तो जब बोलने के टाइम तो हम बहुत नॉस्टैल्जिया के बारे में बोल दिए सेंटेंस में. काफी सारे बोल दिए नॉस्टैल्जिया, because I became nostalgic when I remember my childhood days. Okay, very good, very nice. So just Gautam, Sunita, जिनको ये वर्ड्स पहली बार आपने देखा, तो नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि एक बहुत पुराने टाइम पे आपके बचपन में या बहुत लंबे टाइम बाद आप फिर से उन किसी इंसान से मिले हो, या फिर से आपको कोई स्मेल आ रहा है, जो स्मेल आपको याद आ रहा है, फिर से आपने कुछ ऐसा कुछ देखा है जो आपने बहुत आप आगे देखा था, जिसको देख के ना आप इमोशनल हो जाते हो. माय गॉड, बहुत अच्छा लगता है. वो जो फीलिंग है ना, वो होता है फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया. जब आपको वो पुरानी चीज फिर से मतलब आपके इमोशन को वाइब्रेट करती है, फील कराती है आपको. सो दैट इज नॉस्टैल्जिया. तो ये अब है कि इसको लेके आपको एक सेंटेंस बनाना है. सो एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखा हूं, आप इस सेंटेंस को देखें, और इस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, अच्छे से सुनिएगा इसको, अच्छे से इस सेंटेंस को देखिए.
Okay, just a minute. There are double A. Okay. Yes. He gets a wave of nostalgia whether whenever he sees breathtaking Howrah Bridge. जब भी वो हावड़ा ब्रिज को देखता है ना, उसे पुरानी बहुत सारी बातें याद आ जाती है. This is the sentence. He gets a wave of nostalgia whenever he sees breathtaking Howrah Bridge. First of all, are you understanding this sentence or not? Yes, sir. So this is very important because कुछ मिनट पहले ये वर्ड आपको पता नहीं था, अभी आपको ये वर्ड पता है. So इस वर्ड से मैं सबको एक एक्टिविटी दूंगा, आप लोग इसको करके मुझे व्हाट्सएप करोगे. नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड आपको मुझे एक सेंटेंस, ओनली वन सेंटेंस आपको मुझे व्हाट्सएप करने हैं. सर इसका पूरा मीनिंग आप बताइए तो. He gets a wave of nostalgia. When he sees breathtaking Howrah Bridge, जब भी वो हावड़ा ब्रिज को देखता है, उससे बहुत पुरानी यादें ताजा हो जाती है उसके अंदर. हो सकता है कि हावड़ा ब्रिज से रिलेटेड कुछ ऐसी स्टोरीज उसके दिमाग में कहीं पे गड़ी हुई है. वो स्टोरीज अच्छी भी हो सकती है, वो स्टोरीज नेगेटिव भी हो सकती है. ओके, बट नॉस्टैल्जिया हम लोग ज्यादातर पॉजिटिव सिचुएशन में यूज करते हैं. सो जब भी वो हावड़ा ब्रिज को देखता है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि उसको बहुत पुराने टाइम के पिक्चर्स, पुराने टाइम के फीलिंग्स याद आ जाते हैं. सो ही गेट्स अ वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया. वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया मतलब बहुत सारी यादें. वेव ऑफ मतलब बहुत सारी यादें ताजा हो जाती है. ओके, ही गेट्स अ वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया whenever he sees breathtaking Howrah Bridge. जरूरी नहीं कि आपको कुछ आउटस्टैंडिंग सेंटेंस लिखने हैं, आप नॉर्मल सेंटेंस भी लिख सकते हो. और जरूरी नहीं कि भेजना है कि बाद में भेजना है. नहीं, बाद में भेजना है. Sir, this word breathtaking, this is also very uncommon word and very yes, of beautiful. course, मैं वही बोलने जा रहा था. आपका ये 10 वर्ड में ये I don't know whether it will come out not, but this word is also very beautiful. Absolutely. Sad, I think Devashish got it very rightly. Breathtaking मतलब हावड़ा ब्रिज ऐसा सांसें रुक जाती है, जैसे सांसें रुक जाती है. वो ऐसा फीलिंग्स हो जाता है अपना अंदर, पुराना यादें ऐसे आ जाते हैं अंदर में, ये आपका सांसें रुक जाती है. राइट. सो ये ब्रेथ टेकिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फीलिंग. ब्रेथ टेकिंग फीलिंग, दिस इज ब्यूटीफुल वर्ड. ये वर्ड भी बहुत अच्छा है, आप लोग लिख सकते हो एंड आप यूज भी कर सकते हो. ब्रेथ टेकिंग हावड़ा ब्रिज. बट यहाँ पे हम लोग डीफोकस नहीं रहेंगे. हमारा यहाँ पे जो मेन वर्ड है दैट इज नॉस्टैल्जिया. अब इंपॉर्टेंट है कि इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे. तो चलिए एक बार पूछते हैं. सुनीता जी एक बार बोल के दिखाइए. नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया. देवाशीष. नॉस्टैल्जिया. ओके. गौतम. Nostalgia. Siddharth. Nostalgia. Yeah, Shujoy, how will you pronounce it? Nostalgia. Okay. अभी मैं आपको बताता हूं कोई भी वर्ड को आप प्रोनाउंस कैसे करोगे. So I'm telling you how you can pronounce it. पहले ही मैं एक आपको प्रोनाउंसिएशन कीज दिखा रहा हूं. आप जो नीचे देख रहे हो उसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन कीज. प्रोनाउंसिएशन कीज. आप इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करोगे. ये जो वर्ड आप नीचे देख रहे हो, छोटे छोटे पार्ट में ये सिलेबल्ड है. आप देखोगे कि पूरे पार्ट में कुछ लेटर्स हैं जो कैपिटल है. कैन यू सी दैट? यस सर. कैपिटल है मतलब इस 3 लेटर को आपको ज्यादा जोर लगा के बोलना पड़ेगा. जोर लगा के बोलना. यस. और उसके बाद जो आप NOS देख रहे हो उसमें आप वो स्मॉल है, मतलब NOS में आप ज्यादा प्रेशर मत लगाना. टैल में ज्यादा प्रेशर लगेगा. गौतम. Sir, can you please repeat it again?
I was Yes. automatically disconnected. कोई बात नहीं गौतम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब भी ये जो आप नीचे देख रहे हो इसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन की। इसमें जो कैपिटल में है उसका मतलब होता है कि वो जो कैपिटल में जो एक सिलेबल आप देख रहे हो टैल, वो टैल को आप जब बोलोगे उसमें आप ज्यादा जोर लगाओगे, और उसके बाद जो नॉस है NOS, वो नॉस को तो आपको पहले बोलना है, तो नॉस को जब आप बोलोगे तो ज्यादा जोर नहीं लगाओगे। और आप वहां पे देख रहे हो एक ई जैसा एक स्ट्रक्चर है, ई जैसा जो उल्टा ई है, उसको बोला जाता है स्क्वा। याद रखना, स्क्वा, SCHWA, स्क्वा, SCHWA, स्क्वा। इसको स्क्वा बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं बोलूं स्क्वा तो समझ जाइएगा। स्क्वा का मीनिंग है कि एक डिम साउंड। डिम साउंड, डिम साउंड मतलब बहुत कम डिम साउंड। हाँ, मतलब हल्का, बहुत हल्का, बहुत इतना हल्का, हल्का, इतना हल्का कि मैं ए बोला कि ई बोला कि आई बोला, किसी को समझ में नहीं आया। वेरी फीबल, वेरी फीबल, वेरी मतलब डिम साउंड होना चाहिए। तो अब देखिए मैं बोल रहा हूं नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। अब मैं जिया नहीं बोलूंगा, जा। अब जा मैं जे ए बोल रहा हूं कि जे ई बोल रहा हूं कि जे आई बोल रहा हूं, एकदम साउंड जे के बाद एकदम साउंड डिम हो जाएगा। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। जिया नहीं, हाँ, नेक्स्ट टाइम कभी जिया नहीं बोलना, नॉस्टैल्जिया। जैसे ज के बाद that means sir I is silent. I and A अभी हम लोग कीज में देखेंगे। अभी हम लोग जो मेन वर्ड है उसको नहीं देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन की में देख रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन की में जैसा है आपको वैसा ही बोलना पड़ेगा, नॉस्टैल्जिया। अब जे के बाद आप आई लगा रहे हो कि ई लगा रहे हो कि ए लगा रहे हो, ये किसी को समझ में नहीं आना चाहिए। नॉस्टैल्जिया, मैं जे के बाद और आपको समझ में दूंगा ही नहीं कि मैं क्या बोला, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। इससे पहले तो हम डिक्शनरी में खाली केवल ऐसे देखते थे, मालूम नहीं था कि क्या है। हाँ, दिस इज कॉल्ड स्क्वा। ओके सर, दिस इज कॉल्ड स्क्वा। ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन कीज हैं। एटीदेव ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जब व्हेन वी गो थ्रू वी सी दिस काइंड ऑफ थिंग। टुडे आई केम टू नो व्हाट इज दिस। इसको हम लोग थोड़ा सा बीच से स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट एक आपको आइडिया देने के लिए कि कैसे हम लोग वोकैबुलरी को प्रैक्टिस करेंगे। जब हम लोग एकदम डे 1 से करेंगे ना, तो यही प्रोनाउंसिएशन कीज को लेके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। So that is the thing. Then sir articulation will be right sir. Yes. इससे क्या होगा ना कि सब लोग एक ही तरह से वर्ड को यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, बट इट्स नॉट नॉस्टैल्जिया, इट्स नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। When we say, then when we will say nostalgic, then what will say? Nostalgic. Nostalgic is a different word. Yes. Nostalgic, we are not talking about nostalgic. We are talking about nostalgia. So nostalgia जब बोलेंगे तब हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है? Am I understood, my dear friends? Yes sir. तो अभी हम लोग we want to decorate our word, हाँ, इसीलिए we are focusing more on it, क्योंकि कभी कभी वर्ड्स पे भी हमें फोकस करना चाहिए। Okay, can we go to the next? Yes sir. Okay. कभी कभी ना वर्ड्स ऐसे आते हैं ना कि मुंह में आते ही नहीं है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी ऊंचा हो जाता है, एकदम आपका जो जीव है ना वो एकदम घूमता रहेगा। लेकिन बात है, द मोर यू प्रैक्टिस यू विल गेट दैट हैबिट ऑफ स्पीकिंग। आप तो इंग्लिश को भूल के खा गए। Okay, we are going to the next one. Yeah, that's super. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है और बहुत ही यूज होता है। What is this word, Devashish? Satiated. Okay. Yeah, Sunita ji. Satiated. Okay. Yeah, anyone? Siddharth, Sujay, Gautam.
I think so. It's satiated. Yeah. Let's see what it is. It's okay. It's called satiated. 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 जब मैं प्रोनाउंसिएशन कीज में जाऊंगा तब आपको ज्यादा पता चलेगा. It's satiated. Satiated का मतलब होता है satisfied होना, over satisfaction, बहुत ज्यादा satisfied होना, बहुत ही ज्यादा satisfied होना. Satiated. एक सेंटेंस यूज करते हैं हम. The huge buffet dinner at JWM left him satiated. A huge buffet dinner at JWM left him satiated. मैं बता रहा हूं कि एक इंसान जो JW मैरियट में गया, वहां पे उसने बफे डिनर लिया. वो बफे डिनर लेने के बाद वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गया. You know, he left, which वो डिनर जो है वो इसको काफी सेटिस्फाइड बना. वहाँ का डिनर बहुत अच्छा है सर, मैं 2-3 बार गई. Now don't change the topic. जाने से नहीं होगा आपको आपका ये बोलने से एक नया चीज हमको जानकारी मिल गया सर. It's not buffet, it's buffet. हाँ. So yeah, बहुत लोग इसको बुफे बोलते हैं. It's basically buffet. मैं भी तो बोलता था आज से पहले, अभी से पहले. So it's called buffet. टी का साउंड नहीं होगा. टी का साउंड नहीं होगा. ठीक है, लेकिन हम बुफे बोलता था. बुफे. हाँ, it's buffet. हम लोग के घर पे बुफे ही सब बोलते. हाँ, it's a buffet. It's a buffet. Yes, Siddharth. No, sir. I understand that actually. Yeah. The huge buffet dinner at JWM left him satiated. Okay, तो इसका मतलब है over satisfied. अब आप नीचे देखो जो pronunciation की है. अब आप देखोगे दो चीजें. एक है कैपिटल के साथ एक ऊपर में एक कॉमा जैसा है. उसका मतलब है कि इसको आपको बहुत जोर से प्रोनाउंस करना पड़ेगा. यू हैव टू एम्फेसिस दिस पर्टिकुलर सिलेबल. उसके बाद है शी, SHEE. उसके बाद स्मॉल लेटर्स के साथ वो कॉमा फिर से रिपीट है. आप लोग देख रहे हो ना उसको? yes. तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल वाला है जिसके ऊपर भी एक इन्वर्टेड कॉमा है वो पहले बोलना है. पहले बोलना है मतलब जोर से बोलना है. उसके बाद का जो ज्यादा मतलब उसके बाद का जो साउंड होगा वो A एंड Y में थोड़ा ज्यादा होगा. उसके बाद शी और T जो लास्ट में है उसमें होगा. मतलब आपका जो साउंड होगा से SAY जैसे होता है ना, वैसे होगा से. उसका साउंड ज्यादा होगा. उसके बाद का जो साउंड है शी वो थोड़ा सा नीचे होगा. से शी. और जो ए है AY उसका प्रोनाउंसिएशन शीक से थोड़ा सा ऊपर होगा. उसका जो पिच होगा सबसे ज्यादा होगा पिच कैपिटल में SAY का. उसके बाद का जो पिच हाई होगा वो है AY क्योंकि उसके ऊपर भी एक कॉमा जैसा है. राइट. सो AY में नेक्स्ट पिच होगा. उसके बाद वाला जो पिच होगा वो शी में होगा. उसके बाद जो होगा वो लास्ट वाले में होगा. So it's the sound will come as satiated. देखो मैंने से शी को थोड़ा सा नीचे किया, फिर ए को फिर थोड़ा सा ऊपर किया, उसके बाद का लास्ट में मैंने किया. देखो satiated मतलब शी के बाद मैंने ए जब बोला तो थोड़ा सा फिर ऊपर आया. satiated yes. satiated टी नहीं है. से शी SHEE जैसे होता है ना शी, वैसा वाला शी. satiated इसका जो साउंड होगा वो होगा satiated. दिमाग में रखिएगा हमेशा
कैपिटल में कॉमा रहेगा तो उसको ज्यादा प्रोनाउंस करना है, अगर जो स्मॉल लेटर्स में है उसमें अगर कॉमा होगा तो मतलब उसमें थोड़ा सा उससे कम होगा, कैपिटल वाले से कम होगा, और जिसमें कॉमा नहीं रहेगा वो एकदम ही कम होगा। और स्क्वा है टी, स्क्वा डी, इसका मतलब है कि टी के बाद ए है कि ई है, जो भी होगा साउंड कम हो जाएगा। सेशिएटेड, तो टी एंड डी साउंड में आएगा, वो ई बोला कि ए बोला उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स कॉल्ड सेशिएटेड। फाइन, डन? Okay. Yes, sir. These words are very important, और मैं बता रहा हूँ ये वर्ड आप में से कोई है जो इससे पहले देखा था कहीं पे? No, no, no. बी वेरी फ्रैंक, ऐसा नहीं है बहुत समय हमें सब कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो मुझे नहीं पता, लेकिन बात है कि हम लोग लर्न करें हमेशा। मैं एक चीज आपको मतलब जादू की बात बताना चाहता हूँ। ये वर्ड आपने कभी देखा नहीं, ये गलत बात है। ये वर्ड आपने डेफिनेटली देखा होगा, लेकिन जबकि ये वर्ड के बारे में आपको पता नहीं था तो ये वर्ड आपके आंख के सामने आया नहीं, मतलब आपके सामने था लेकिन सामने आया नहीं। देखे नहीं हम लोगों ने। हाँ, देखे नहीं, आपने अपने को अलाउ नहीं किया कि आप उस वर्ड को देखोगे, क्योंकि वर्ड आपके लिए अनजाना था। अब जब ये वर्ड आपको पता चल गया ना, मैं आपको एकदम चैलेंज बोल सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर या नॉर्मल थोड़ा पढ़ाई लिखाई अगर इधर उधर करते हो, मतलब बुक्स पढ़ना या किताब पढ़ना या न्यूज़पेपर पढ़ना या न्यूज़ देखना, ये वर्ड अभी आपके कान में आएगा। इसके पहले भी जरूर आया था, लेकिन आपको पता नहीं था बोल के आपने गौर नहीं किया, लेकिन अब आपको ये सेशिएटेड पता चल गया, अब ये आपके कान में गूंजेगा, आंख के सामने आएगा, क्योंकि नाउ यू नो दिस वर्ड। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो अभी हम लोग सारे फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। Yes. या ऊपर में जो वर्ड है वो नाउन है, और जो पिक्चर आप देख रहे हो वो एडजेक्टिव है। सो व्हाट इज दिस वर्ड? हाउ विल यू प्रोनाउंस इट? Yes. How will you pronounce this word? Sunita ji. Yes. Benevolence. Okay. Yeah, Siddharth. Gautam. Benevolent. Benevolent. Benevolence. Okay. Benevolence. Okay. Yeah, Sujay. Benevolent. Okay. What does it mean? किसी को ये वर्ड पता है? Is a feeling of kindness. Kindness. तो एडजेक्टिव जो बेनेवलेंट है, इसका मतलब है कि वो इंसान बहुत काइंड है, बहुत हेल्प करता है, लोगों को प्यार करता है, लोगों को हेल्प करता है, लोगों के बारे में सोचता है। सो बेनेवलेंस का मतलब होता है, जैसे हम लोग काइंडनेस बोलते हैं, बेनेवलेंस एक ऐसा फीलिंग है, मतलब वो बहुत काइंड है, बहुत अच्छा इंसान है, लोगों को बहुत हेल्पफुल है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हेल्पफुल है, Yes. लोगों के पेन को समझता है, फील करता है। That is called benevolence. Okay, एक sentence देखेंगे। His attitude towards all mankind was one of benevolence. His attitude toward all mankind was one of benevolence. So उसका जो attitude है वो बहुत ज्यादा benevolent है, but ये जो attitude है, ये attitude को ये benevolence है, मतलब ये नेचर है, ये नाउन है बेनेवलेंस, एडजेक्टिव है बेनेवलेंट। ओके, इसको कैसे साउंड करेंगे एक बार देख लेते हैं। बेनेव, नेव में आपका ज्यादा प्रोनाउंसिएशन होगा। बेनेव मतलब बी के बाद आप ए और ई का जो मिक्स होता है ना, वैसे ही आप कुछ डिम करोगे साउंड को। बे 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 नेव,
बेनेव, बेनेव, बेनेव। उसके बाद फिर से स्क्वा है, बेनेव। अब वो स्क्वा का तो अपना कोई साउंड है नहीं, तो हम लोग लास्ट वाले सिलेबल में जाएंगे। लेंस, लेंस, बेनेवलेंस, बेनेवलेंस। Benevolence. नेव एंड लेंस Benevolence. नहीं, नेवलेंस नहीं होगा, वो जो स्क्वा है उसका डीम थोड़ा करना पड़ेगा आपको। बेनेवलेंस, Benevolence. Benevolence. बेनेवलेंस, Benevolence. यस। वो ई जो आपका स्क्वा है, Benevolence. यस, जस्ट स्क्वा विल डिम द साउंड बिटवीन नेव एंड लेंस। इट्स बेनेवलेंस, benevolence. It's not it's bene, benev, benev. बेनेव, बेनेव, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेने बोल रहे हैं, BENE। बेनेव, बेने नहीं है, बेनेव। नेव में ज्यादा फोकस होगा, ज्यादा एम्फेसिस होगा, नेव, 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 बेनेव। Benevolence. हाँ, Benevolence. बेनेव, इट्स नॉट बेने, इट्स बेनेव, बेनेवलेंस, बेनेवलेंस। बेनेवलेंस। एक बार हम लोग बोलते रहेंगे ना तो वो हमारे टंग में आ जाएगा। सी एक हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी ऐसा हम इंग्लिश लोग बोलेंगे तो अगला क्या सोचेगा, अगला तो मतलब अगला सोच में पड़ेगा सोचेगा, माय बंदा क्या गॉड, बोल रहा है, बंदा क्या बोल रहा है। बेनेवलेंस, you know, it's benevolence. बेनेवलेंस, I would say what a benevolence, you know, what a benevolence, what a kindness, what a helpfulness, what a benevolence. तो कोई सुनेगा ना, आप कुछ अलग बोलोगे ना तो लोग ज्यादा सुनेंगे। आपको लग रहा है माय गॉड कितना डिफिकल्ट है, कितना कितना डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्यों है आपके लिए? क्योंकि आपने यूज नहीं किया, आपने सुना नहीं। आप जैसे ही आपको पता चल गया, आप यूज करोगे, ये आपके लिए फिर से ये पुराना हो जाएगा, जैसे आपका काइंडनेस वर्ड है। सुनीता जी तो जब से क्लास स्टार्ट हुआ हंसी भी नहीं, लग रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है सर पे। नहीं, मैं अच्छा समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा हाँ, सीरियस हो गई। देखो मैं भी उसको ऐसे करके आपको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो और थोड़ा सा समझे भी और इसको इन फ्यूचर यूज भी करें। So the sense of benevolence, benevolent, नेव में ज्यादा प्रोनाउंसिएशन होगा। ये जो प्रोनाउंसिएशन की है ना, इसको लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा प्रोनाउंसिएशन करने में। जी सर, मैं नोट कर रही हूँ। हाँ, तो ये बेने, generally हाँ, generally say he's a very kind hearted person, then Yeah, can we so- say he's benevolence person? yes, हम of लोग course. काइंडनेस और हेल्पफुल की जगह ये यूज कर सकते हैं सर। बेनेवलेंट पर्सन बोलने का जरूरत नहीं है। he is very benevolent, is very benevolent। पर्सन बोलने Yes, की yes, जरूरत that's what नहीं I है। was asking कि हाँ, यही मेरा सवाल था, क्या पर्सन हाँ। इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो सर That's हम what लोग I was काइंडनेस, asking. सर हम That's लोग what my- काइंडनेस और हेल्पफुल की जगह यूज कर सकते हैं ये वर्ड को एकदम ना? यूज कर सकते हैं, एकदम यूज कर सकते हैं। Sir, I बट have a उसको एकदम question. एटीट्यूड, हाँ, आई एम कमिंग सिद्धार्थ। बट उसको ना ये सब वर्ड जब आप यूज करो ना तो शक्ल में ना एक रोशनी होना चाहिए, एक ब्राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शक्ल में कि आप शक्ल ऐसा बनाए हो जैसे आपको तकलीफ हो रही है बोलने में, तो सामने बोलने वाला में। सुनने में तो उसको बुखार आ जाएगा। मतलब वो फेस पे दिखना चाहिए। हाँ, आपके फेस में वो फील होना चाहिए, व्हाट अ बेनेवलेंट पर्सन, you know, or what a benevolent, you know, attitude. It's such a nice benevolence, such a nice benevolence. See, maybe in our life, even I also don't use so much this word, but it's a one of the, you know, these words basically create impact. Yeah, Siddharth. Sir, what a benevolence or Yeah. benevolent or benevolence? What a Actually- benevolence. What a benevolence. Okay, the noun Benevolent, form- benevolent is an adjective. Okay, the noun form is using here, right? In this sentence. Yes, What are- yes. In this Okay. sentence, we are using benevolence, that is noun. And Okay, sir. benevolent is basically adjective. Okay, sir. Okay, can we go ahead? Yes, sir. Okay, guys, let's go to the fourth one. Yeah, this is the word we normally use many times. That's Very close to everyone and very known to everyone. Frustration. Frustration,
right? Do we use this word? Yeah, Sunita ji, do you use this word? Yes, sir. Okay, so Sunita ji, can you tell me any sentence? Can you make any Today I sentence? am very frustrated. Today you are very I'm very frustrated. frustrated. Yes. Okay, so frustrated is basically an adjective. Yes. Frustration is a noun. Frustration. Okay, सर frustration हम noun लोग है. हाँ सर हम लोग ज्यादातर फ्रस्ट्रेशन तो नहीं बोलते, यूज करते तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, मतलब राइट, हम लोग फ्रस्ट्रेट है. फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, राइट, हम हाँ. लोग ऐसे बोलते हैं, राइट, एब्सोल्युटली. सो एक सेंटेंस देखते हैं फ्रस्ट्रेशन से. All life, he claims, is frustration. The gods seem bent on mischievously thwarting his hopes and plans. Thwarting, that is a word, एक नया word और मिल गया आपको. Thwarting his hopes and plans. Sir, what All is the life, meaning? I'll tell you. हर सेंटेंस में भी आपको एक नया वर्ड मिलेगा यहाँ पे. All इसमें दो life, वर्ड नहीं है. हाँ, all life he claims is frustration. सारा लाइफ उसको मिला तो क्या? Frustration. The gods seem bent on mischievously. देखा गया कि ऊपर ईश्वर उसके ऊपर पूरा एकदम लगा हुआ था उसके सारे होप्स एंड प्लान्स का को तोड़ने में. थ्वॉटिंग मतलब एकदम उसको तोड़ना, हर होप्स को तोड़ना, प्लान्स को तोड़ना, उसको हम लोग थ्वॉटिंग बोलते हैं. थ्वॉटिंग, सर्वनाश करना, मतलब नाश करना. जो सही वर्ड होगा वो है नाश करना. हिंदी में नाश करना. बंगाली में भी नाश बोलते हैं क्या हम लोग? नाश, सर्वनाश बोलते हैं बंगाली में ना. हाँ, सर्वनाश बोलते हैं. हाँ. सो इसमें है कि नाश करना, सारे होप एंड प्लान्स को थ्वॉट करना. थ्वॉटिंग, तो थ्वॉटिंग इज अ वर्ड. हाँ, वर्ब. तो थ्वॉटिंग से वर्ब फैमिली भी आ जाएगा. Sir, Yes. can I say like this? The disaster thwarted Sundarban. डिजास्टर. ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा. यहाँ पे जो थ्वॉटिंग है ये कोई एक यहाँ पे एक पर्सन लाइक स्ट्रक्चर ही कर सकता है. आप जो बोल रहे हो वो ग्रामेटिकली सही है. मैं नहीं बोलूंगा कि एक तूफान ने थ्वॉट कर लिया. किसी इंसान ने या भगवान को भी हम लोग एक इंसान जैसा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं यहाँ पे. यू नो, you thwarted my hopes and plans, हम लोग बोल सकते हैं. यहाँ पे गॉड को भी हम लोग एक इंसान वाले रूप में ही हम लोग यहाँ पे पेश कर रहे हैं. इसीलिए हमने थ्वॉटिंग मैंने बोला कि कोई थ्वॉटिंग किया है. सो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हम लोग स्टॉर्म के साथ, साइक्लोन के साथ, अर्थक्वेक के साथ हम लोग थ्वॉटिंग यूज नहीं करेंगे. ये हम लोग उसी के वही थॉट करेगा जो एक पर्सन है, कोई इंसान है, वही मेरा होप एंड प्लान्स को पूरा सर्वनाश या नाश कर सकता है. यहाँ पे गॉड को हम लोग उसी हिसाब से देख रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसमें ट्रे में ज्यादा साउंड होगा, ज्यादा एम्फेसिस होगा. फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट नॉर्मली होगा, ट्रे थोड़ा सा हाई पिच में होगा. फ्रस्ट्रेशन. यस, फ्रस्ट्रेशन. तो ये जो की है ये है प्रोनाउंसिएशन की. फ्रस्ट्रेशन, याद रखिएगा इसको. फ्रस्ट्रेशन. So this sentence is very heavy. Yes. Yes. All life he claims is frustration. Well decorated. Well decorated because so many good words have been used, like mischievously. Very tough. Mischievously. This is also a very nice word. फिर भी आप लोगों ने सुना होगा, but mischievously is also a very nice word. Yes, mischievously. इसका मीनिंग क्या होता है सर?
Sir, in my school days, the conduct नहीं लिखा जाता कि conduct Yeah. good, bad, one, Yes. two. And I can remember when तुम I was बात in कर class लो 1, मम्मा 2, क्लास I was to get conduct mischievous. मिस्चीवियस का हिंदी मीनिंग क्या Talkative होगा? and कोई mischievous. मिस्चीवियस मतलब थोड़ा सा नॉटी टाइप, थोड़ा सा you know exact शरारती। word. Yes, शरारती, absolutely. शरारती, mischievous, एकदम राइट. ओके, चलिए हम लोग सर और और एक ये बेंट का मतलब क्या होता है? बेंट होना, बेंट होना. बेंट द गोट सीम कैसे बेंट होता है ना? हाँ, मतलब बेंट मतलब किसी के ऊपर एक बेंट होना, झुक जाना। हाँ, झुकना. या यहाँ पे जो वर्ड बेंट को यूज किया गया है वो एक अलग मीनिंग से किया गया है. सो ये मीनिंग को आप मत पकड़िए, फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा. यहाँ पे इसको थोड़ा डेकोरेट किया गया है इस वर्ड, इस सेंटेंस को. द गॉड्स सीम बेंट ऑन मिस्चीवियसली, मतलब शरारती बन के गॉड एकदम पीछे पड़ गया है उसके होप्स एंड प्लान्स को तोड़ने खत्म में. करने के लिए. राइट, एब्सोल्युटली. आप लोग एक काम कर सकते हो, इस सेंटेंस को एकदम ऐसे दिमाग में सेव कर लो कि गॉड के जगह आप किसी और को भी हमेशा यूज कर सकते हो. Yes. और यही किसी सेम person को। सेंटेंस को आप ऐसे दिमाग में मतलब गाड़ लो कि यही सेम सेंटेंस आप बहुत जगह यूज कर सकते हो, आपको ज्यादा सोचना ना पड़े. द गॉड सेम बेंट ऑन, ये जो वर्ड है द गॉड सेम बेंट ऑन, और सुनीता जी seems bent on mischievously thwarting my hopes and plans, like that you can say. जो हमारे Okay, we'll go for the next one. Okay, this will be the last for the night. इसके बाद we will. So the last for today is, yes, this is the word we use so many times. We know that. What is that? आप तो बहुत बार बोले हैं सर, लेथार्जी। How will you pronounce it, Devashish? How will you pronounce it? दिन तो लेथर्जी बोल देते हैं. अभी अभी सब कैसे बोलने से इसको- पहले बहुत कुछ सोच रहा है अभी कैसे सोचना pronounce. पड़ेगा कि कैसे होगा. Yeah, Siddharth, how will you pronounce it? I think it's lethargy. लेथार्जी। Lethargy. TH के ऊपर तो जोर देना ही है. था के ऊपर TH हाँ। अच्छा, आप लोग को yeah, Gautam, let's Lethargy. Gautam speak something. Yeah, Gautam, what do you think? Emphasis किसके ऊपर ज्यादा रहेगा? यहाँ पे कैपिटल की कौन सा रहेगा? था माने सर मेरे ख्याल से THA या THAR? यार लेथा. THAR लेथार्जी। लेथार्जी अलग होगा सर। लेथार्जी। सर वाई तो सर स्क्वा होगा. हाँ वाई का होगा, टी पे का कम प्रेशर होगा उस पे। ओके ओके, काफी Why स्मार्ट will हो it- गए आप लोग. एक दिन में बहुत इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप लोग. यस, वेरी गुड. यहाँ पे है कि वो कैपिटल डोमिनेंट सिलेबल कौन सा होगा? थर. TH. ये Okay. तो हमको नहीं लगता, हमको TH ही लगता है. Okay, let's start. Let's find it out. Okay, पहले एक sentence देखते हैं. You can write down or you can see this sentence. His illness left him in the state of lethargy. All ambition, interest, desire were gone. His illness left him in the state of lethargy. All ambition, interest, desire were gone. अभी हम लोग जाएंगे pronunciation key को देखेंगे एक बार. So here comes the pronunciation key. What you thought was totally different, and how we speak is totally different. हम लोग कैसे बोलते हैं? ले को अलग रखते हैं, थर जी. But the right, different हो गया सर। but yes, but the right way you can speak is let. फिर वो स्क्वा आएगा, lethargy. Let. It's not lethar.
It's lethargy. 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 Okay, it's lethargy. Lethargy. It's not lethargy. It's lethargy. Let. दिमाग में रखिएगा, the pronunciation will be more on the lethargy. Lethargy. So his illness left him in a state of lethargy. और यहाँ पे G आएगा, हाँ, हम लोग जो Y को स्क्वा सोच रहे थे, यहाँ पे G आएगा. Lethargy. आगे और इंजीनियरिंग नहीं करेंगे. हाँ, वही सर, इंजीनियरिंग तो करना ही है. पूरा उल्टा पड़ गया सर. उल्टा पड़ गया. टोटली डिफरेंट. बट आप लोग एक बात सोचो, हम लोग बचपन यस, हम लोग बचपन से इसको क्या बोल रहे हैं? लेथार्जी बोलते थे. लेथार्जी, THA के ऊपर जोर देते हैं. हम लोग लेथार के ऊपर, थार के ऊपर भी हमारा प्रोनाउंसिएशन रहता था. बट हम लोग इसको लेथ इज द फर्स्ट सिलेबल. लेथार्जी. लेथार्जी. RG नहीं, हाँ, लेथार्जी. यस. आर बोलेंगे तो ए जैसा साउंड आएगा. ये ई और ए का एक मिक्स साउंड रहेगा. अर्जी. अर्जी. लेथार्जी. Lethargy. Lethargy नहीं, lethargy. Sujay, you are understanding, right? Because Sujay is not speaking anything, so I'm just thinking what happened. Today is more of a learning part. So okay, now we'll do one small test. सर इसका मतलब आलस होगा ना? आलस एकदम, आलस. मुझे लगा शायद आप लोग पता है, इसीलिए मैं मीनिंग में गया ही नहीं. मुझे पता था, कंफर्म कर रही. पता है एक चीज मैं आप सबको बता रहा हूँ, मीनिंग जो होता है ना, हम लोग हिंदी मीनिंग या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में मीनिंग खोजते हैं. मीनिंग नहीं खोजना चाहिए. एक जैसे हिंदी क्लास चल रहा है, हिंदी क्लास में एक टीचर स्टूडेंट को बोल रहा है, ये है बिल्ली. बिल्ली का मतलब होता है कैट, और कैट का मतलब होता है बिल्ली. दिस इज द रॉन्ग एक्सप्लेनेशन. अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? दिस इज अ कैट. कैट इज एन एनिमल. कैट हैज 4 फूट एंड यू कैन सी कैट एवरीवेयर. सो मैं आपको कैट के बारे में जो समझाऊंगा ना, उसको इंग्लिश में ही समझाऊंगा. आपको अगर समझना है तो कैट को इंग्लिश में ही समझना है, अगर इंग्लिश आपको बेटर करना है. लेकिन क्या होता है, नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ज्यादातर हम लोग इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं और मीनिंग को हिंदी में बोलते हैं. वो नहीं होना चाहिए. इसीलिए मैंने इसका हिंदी आपको नहीं बोला. मैंने सोचा आप इसको समझ जाइए. मीनिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. दिस इज द स्टेट ऑफ very feeling so lazy, not getting the energy to work. So मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ इंग्लिश में ही. So वैसे ही होना चाहिए. So his illness left him in a state of lethargy. All ambition, interest, desire were gone. चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए आप लोग का. आप लोग इतने देर से साथ में थे, so आप लोग अभी एक्सपर्ट हो गए होंगे. ओके, सो एक छोटा सा टेस्ट देके उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे. ओके, फास्ट क्विज. दिस इज अ फास्ट क्विज. यस, दिस इज अ फिल इन द ब्लैंक्स. हमने जो वर्ड्स अभी किया, जो वर्ड भी किया, उस 5 वर्ड में कौन सा वर्ड यहाँ पे बैठेगा? डैश, स्टेट ऑफ एपैथी और इनडिफरेंस. एपैथी का मतलब होता है नो इंटरेस्ट. एपैथी, सेंस ऑफ एपैथी का मतलब होता है कोई इंटरेस्ट नहीं. स्टेट ऑफ एपैथी, नो इंटरेस्ट. What will be the word sitting in this fill in the blank? Lethargy. Huh? Lethargy. Lethargy. I don't know. I'll show you later. Yeah, Devashish, what do you think? So please explain this thing, apathy. Apathy. State of apathy means not interested, no interest. State of apathy. आज ये भी एक वर्ड आपको मिल गया. स्टेट ऑफ एपैथी मतलब नो इंटरेस्ट.
So lethargy. lethargy. Okay. या सुनीता जी lethargy Yes, लग रहा है sir. सबको. Yes, lethargy. lethargy नहीं lethargy. नहीं lethargy. ऐसे हाँ, बोली मैं. चलिए ओके Lethargy. ओके फाइन. चलिए इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. सेकंड वाला बोलिए. सीवियर होम सिकनेस. घर जाना है काइंड ऑफ होम सिकनेस बोलते हैं इसको. सीवियर होम सिकनेस, अ लॉन्गिंग फॉर द प्लेजेंट पास्ट. यहाँ भी लेथर्जी होगा. हाँ Nostalgia. सब जगह लेथर्जी होगा. पांच Nostalgia. 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 पहला वाला फर्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. होगा. First, sir. Nostalgia. 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 ओके. Nostalgia. सीवियर होम सिकनेस, अ लॉन्गिंग फॉर अ प्लेजेंट पास्ट. ओके हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी देखते हैं नंबर 3. ये सेंटेंस सब आप लोग लिख लीजिएगा बिकॉज ये सेंटेंस ही डेफिनेशन है. आई एम टेलिंग यू अगेन, ये सेंटेंस ही रियल डेफिनेशन है उस वर्ड का. डैश डिजायर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, चैरिटेबलनेस. डिजायर फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स. वेलफेयर ऑफ अदर्स मतलब लोगों का भला करना. So benevolence. Yes, sir. Benevolence. 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 एक फ्लो रखिए सुनीता जी, अलग अलग ब्रेक नहीं करना है. Benevolence. Benevolence. Benevolence, desire for the. So ये जो देख रहे हो ना ब्लैंक में वो वर्ड जाएगा और बाकी जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है इसका डेफिनेशन कि एग्जैक्टली वो क्या है. Okay, number 4. Filled beyond natural desire, glutted. Frustration. Beyond natural desire. That over-satisfied one. Satisfied. That is satiate. Yes, sir. satiate. Satiate. Yeah. So what will be the answer? Satiated. Satiated. Okay, fine. Number 5. Failure or inability. Frustration. Frustration. Okay, now see your answers. देख मिला लीजिए आप लोग जो नेक्स्ट जो सोचा वही आंसर है कि नहीं. All were right. Yes, sir. आया नहीं.